So today we'll start the basic of JavaScript, right? Basic means very basic elements, which is very in every programming language. These are the basic things. So what are the basic things? Like variable, data type, then different type of operator and functions, right? So these are the basic things. Then next we will understand what is the scope and hoisting, all this stuff, because these basic things is very important. Like scope, what are the different type of scope, how scope differ using different type of variable declarations, all these things, right? So first we will understand what is variable and what is declaration of variables, declaration and initialization, right? So variable kya hai? If anybody can share your knowledge, it will be fine, because you all are from programming background. What is variable? Sir, variable is a keyword to storing data. Okay. Hello. Variable is container. Hello. Go ahead. Variable is a Sir. container. Hello. Sir, variable is nothing but the name given for your memory location. Mm-hmm. The name given for your memory location. Yes. So variable is something where you can store the data, but we can provide a name to that location, means name to that variable, so that we can identify, we can remember and call that variable where our data store. हम सपोज डायरेक्टली मेमोरी में डेटा स्टोर कर देंगे, वो मेमोरी एड्रेस हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, अपने याद नहीं कर पाएंगे, आपको कहाँ पे स्टोर है हमको नहीं जानना है, राइट? बट हम एक नेम देते और वो वेरिएबल में कुछ डेटा स्टोर करने के लिए, राइट? और C++ में कैसे होता है, जैसे तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, उसमें डेटा टाइप मैंडेटरी होता है डिक्लेयर करने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा लेट बार const, these are not data type actually, राइट? डेटा टाइप क्या है, सपोज इंटीजर टाइप है या डबल है, फ्लॉट है, ये सब डेटा टाइप है। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें क्या होता है, it is mandatory to define the data type of variable. जैसे तुम डेटा टाइप डिफाइन करते हो, राइट, देन क्या होता है, ये मेमोरी में स्पेसिफिक डेटा टाइप के लिए वो मेमोरी एलोकेट कर देता है। सपोज ये इंटीजर टाइप है तो 8 बिट या 1 बाइट, सॉरी 16 बिट, लाइक 2 बाइट डेटा। कैरेक्टर है उसके लिए 8 बिट डेटा, 8 बिट मेमोरी जरूरत है, राइट? तो इस तरीके से वो पहले से रिजर्व कर लेता है, फिर तुम डेटा स्टोर कर सकते हो, राइट? बट जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने पहले बताया था, इट इज नॉट ए टाइटली कपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस डेटा टाइप इज नॉट मैंडेटरी। बताया था वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? वीकली टाइप मींस डेटा टाइप इज नॉट नेसेसरी। सो यहाँ पे जो भी डेटा हम स्टोर करेंगे उसके हिसाब से उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा है? पाइथन इज आल्सो वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का डेफिनेशन अपने, गाइज आप म्यूट करना भूल जाते हो बार बार, आप अनम्यूट करते हो फिर म्यूट करना भूल जाते हो। राइट? सो वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल का डेफिनेशन है, वेरिएबल मींस एनीथिंग दैट कैन वेरी इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल का और एक डेफिनेशन क्या है? मेमोरी लोकेशन में स्टोर के लिए तो हम डिक्लेयर करते हैं, बट उसमें डेटा ओवरराइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर डेटा इन वेरिएबल, इनसाइड वेरिएबल। वेरिएबल स्टोर डेटा वैल्यू दैट कैन बी चेंज लेटर ऑन, बट कांस्टेंट में डेटा वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। whenever you initialize it you cannot change it, that is the difference in variable and constant। दोनों डेटा स्टोर करते हैं, बट वेरिएबल में हम डेटा चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन, बट इन कांस्टेंट वी कैनॉट चेंज डेटा, राइट? So to declare variable, what are the keywords we usually use? Var, let and const, three things, right? So what is the difference between these three things? We'll later on
we'll see in details, very details, which is most important, right? So var, let and const are used to declare the variable and constant. Const is specially used for to declare the constants. I have mentioned here let and var are used to declare the variable and const is used to declare the constant. Constant means value cannot be changed, right? So जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पर, राइट? यहाँ पे क्या कि लेट नेम इक्वल टू सीके, यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है। जैसे मैंने सीके स्टोर किया तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे जैसे एज स्टोर किया तो इसका डेटा टाइप, ऑफ कोर्स ये नंबर स्टोर किया बट डबल कोड के अंदर ये स्ट्रिंग हो गया, राइट? तो इसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। कांस्टेंट में सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न इक्वल टू 100, तो इसमें कांस्टेंट अर्न करके एक वेरिएबल का नाम है, कांस्टेंट का नाम है, जिसमें मैंने 100 स्टोर किया। अभी इसमें फिर से कुछ चेंज करने की ट्राई करूंगा, अर्न इक्वल टू 200, ये क्या करेगा? एरर दिखाएगा। लेट मी शो यू ओवर हियर in console. Look, assignment to constant variable. What does it mean? I have tried to store another data to the earn variable, which is not allowed. But if I am store something else in age, then it will work. It will not throw an error. Clear? So वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए देयर आर टू डिफरेंट वे है। ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली राइट समथिंग लाइक दिस, एज इक्वल टू 200, it will, yeah, any other variable I can write like my age equal to 200, so it will also not throw an error. But the scope, in case of scope, it will be drastic changes. So make sure whenever you declare any variable using let, var or without any keyword, then it will create a variable. But there is very much difference. I will explain you later on when I will explain the scope and hoisting, right? But in case of constant, to define a constant or declare a constant, you have to use const keyword. So is it clear? Any question on this? Clear? Yes, sir. Yes, sir. So variable declaration and initialization किसको बोलते हैं? Variable declaration मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया, इनिशियलाइज भी कर दिया वैल्यू, बट खाली डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं? जैसे लेट, हाँ लेट खाली नेम लिखा, राइट? तो ये इसको क्या बोलते हैं कि हम खाली डिक्लेयर ही किए, इसको क्या किए? डिक्लेयर किए, इसको इसमें वैल्यू इसी इनिशियलाइज नहीं किए, सो इट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. And initialization means whenever you store value to that particular variable, then it is called initialization. So whenever you define any variable, okay, for example my name, and I want to print that variable, what is the value inside it by default? So what is the value inside it by default? Undefined. Undefined, because I am not defining any value or assigning any value, right? If I am console.log, I want to console the value, it is undefined, right? So undefined and null I will again explain later on, but right now you should understand what is variable, how to declare it, and how to initialize it, right? So any doubt on it? Is it clear? Yes. So variable ka definition and what are the way to declare the variable and initialize the variable, and let and var is used for variable and const. It is clear? Let's see variable naming convention, how we can provide the name which is a valid variable name. We cannot let's see. So you can, variable name might be camel case, means all character you can use, and camel case you can use means user name.
Why camel case? Because to give a proper name, means there is, if there is two words of to define a meaning, then you can use two words, but second word is starting with capital letter to identify that this is another word. So it is called camel case, right? Also you can use digit, means 1 2 3 4 5 up to 0 0 to 9, आप कोई भी digit इसके अंदर use कर सकते हो, but you cannot use it initially just like here, right? जो वेरिएबल के नाम की स्टैटिक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैनॉट यूज एनी डिजिट, यू हैव टू यूज एनी कैरेक्टर और अंडरस्कोर आल्सो यू कैन यूज. Dollar भी you can use, dollar with kind of special. So this is a variable name, you can start with dollar, so it is also allowed. Underscore also allowed, right? But in between underscore is also allowed, but it is a bad practice. It will not throw an error, but it is a bad practice. You should not use it. If you want to combine two words like username, then you can use camel case like this. Okay. Yes. And you cannot use dash, because dash always represent the minus, right? Plus minus arithmetic operator minus, so you cannot use dash whenever you are creating an variable. You cannot provide the name in between, you cannot use dash, right? Also you cannot use any keywords means reserved word by JavaScript itself. So there are so many reserved word, right? Like let, const, var, if, function. There are so many reserved word which is used by JavaScript to define something. So you cannot use the function, sorry, किसी का name, variable name, function name, किसी का name हम keywords use नहीं कर सकते. Clear? So स्पेशली वेरिएबल पढ़ रहे तो वेरिएबल में कोई भी हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. तो इज इट क्लियर? Yes, sir. If somebody asks you by defining a variable like starting with digit, then he will ask what is the output, then you should throw, so that it will throw an error. Clear? ये खाली सुन के अभी याद रखते हो ऐसा नहीं, you have to practice it, you have to memorize it also for the interview. Remember. So ये डॉक्यूमेंट देखो, वीडियो देखो, जहां पे जो भी देखना है देखो आप, बट यू हैव टू मेमोराइज इट एंड ऑन द स्पॉट आपको याद भी आना चाहिए. इसके लिए प्रैक्टिस, रिपीटेटिवली प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन की जरूरत है. क्लियर? तो मेमोरी नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल का क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? Yes, sir. ओके. Variable declaration and variable initialization I have already mentioned you कि कैसे हम डिक्लेयर करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन. मैंने ऑलरेडी बोल दिया, फिर भी एक बार बता देता हूँ फॉर योर बेटरमेंट. सो इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते, इसको बोलते इनिशियलाइजेशन, मींस वैल्यू असाइन किया मैंने, इनिशियलाइजेशन, राइट, एंड प्रिंट किया मैंने. और वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम ही खाली यूज करते हैं हम. जहां पे वेरिएबल को एक्सेस करना है हम वेरिएबल का नाम यूज करेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. क्लियर? सेम ये वेरिएबल का डायरेक्ट डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी ऐसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, राइट? ऐसे और एक मल्टीपल भी कर सकता हूँ. मल्टीपल वेरिएबल लाइक जैसे लेट, सेम टाइप की वेरिएबल है तो मैं असाइन कर सकता हूँ. जैसे नेम कॉमा एज, सॉरी नेम एड्रेस, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी ऐसे डिक्लेरेशन दोनों कर सकते हैं अपने. ठीक है. सो व्हाट डज इट मीन? इट इज मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ लेट. देन हम वैल्यू असाइनमेंट अलग अलग कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं. सपोज इसको असाइन, दोनों को मैं कर देता हूँ ck, देन बोथ वेरिएबल कैन स्टोर ck. लेट्स सी. नेम कॉमा address. Let's comment this one.
So first one is not working. Name one. Initialization is not possible, but declaration is possible. Okay. Okay. सो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब होस्टिंग बताऊंगा तब डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां पे। आप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों सेम नहीं है, अलग है, ठीक। ओके। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नेमिंग कन्वेंशन, हाउ टू क्रिएट एन वेरिएबल नेम, इज इट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट? No doubt, clear. Okay. Clear, sir. Because these are basic thing. So okay. Now operators. What is operator? Can somebody say? Sir, by which we can perform any operation. Right. So there are in JavaScript or in any programming language, there are different type of operation like arithmetic operations, logical operations, then after operations, and whenever you are using, there are so many increment decrement operation, assignment operation, you are assigning some value, right? So this is an operation. So where an operand and operator will be there. Operand might be one or multiple over there, right? So an operator is capable of manipulating a certain value and or operand. Value is also called operand. हम कोई भी ऑपरेटर के सहारे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई वैल्यू या ऑपरेंड की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, चेंज करना, कुछ भी करना कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं उसको, राइट? इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर वी यूज कंपेयरिंग वैल्यू, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड so on, increment decrement, बहुत सारे ऑपरेटर्स है, different type of operator, we will learn that. So what are the different type of operators? Operators बहुत टाइप के हैं, जो उसमें से जो मेजर और मोस्टली यूज ऑपरेटर मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस डिवीजन, वो सब है। असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इक्वालिटी चेक करना, दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मींस एंड नॉट और नॉट और राइट, so these are logical operator. So what is what is the difference between comparison operator and logical operator? कोई बता सकता है? कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज कंपेयर टू वैल्यूज। लेफ्ट साइड में एक वैल्यू होगा, उसको कंपेयर करेगा राइट साइड के साथ, राइट? सपोज 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, आउटपुट आएगा फॉल्स, राइट? बट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, उसका जो ऑपरेंड होता है ना, ऑपरेंड इज ऑल्सो इन बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करेगा, ये ट्रू और फॉल्स को कंपेयर करता है लॉजिकल ऑपरेटर, राइट? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, कोई वैल्यू हम असाइन करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे ऊपर दिया था, ये असाइन इक्वल टू साइन जो लिख रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम ग्रेजुअली देखते जाएंगे। कुछ स्पेशल ऑपरेटर आल्सो प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट लाइक ternary operator, it is a replacement of if else operator. Type of operator which will show the data type of that particular value, okay? Value or anything, class, function, array, object, किसी का भी वो डेटा टाइप डिफाइन कर सकता है। डेटा टाइप हम पीछे आगे पढ़ेंगे जाके। Then another one is instance of operator. Whenever we are creating a instance of object, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने क्लास से, क्लास पता होगा तुमको, जो C++ जावा पढ़ी हुई है, जो क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे एक क्लास का, कौन सी क्लास का, उसको इंस्टेंस बोलते हैं, इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर क्लास। whenever you are creating an object, this is an instance of particular class or constructor function, right? So जब उसमें किसका इंस्टेंस है वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से,
rest operator and spread operator. These are some operator which is used for different use cases are there. Whenever you are copying something, also you can use spread operator. Whenever you are passing parameters to function, also you can use rest operator, but their syntax is same. So all these operators means comparison, logical, and except arithmetic operator, all the operator we will see later on. But you just remember that these are the different main type of operator. There are hundreds of operators available, bitwise operator. So these are not going to learn initially, because most of the time we are not going to use them, right? But these are the main operator. Most of the time we face those things and we use those things, these operators. So main type of operator are arithmetic operator, comparison operator, logical operator, assignment operator. Then special type of operator like ternary operator, type op operator, instance op operator, rest operator, spread operator, right? So ये type of is a word, keyword, right? वो देखेंगे हम, ये सब बाद में देखेंगे. But now we can go with arithmetic operation. Clear? So what are the different arithmetic operators are there? Like plus, minus, multiplication, division, modulus, square. Means square तो नहीं बोल सकते इसको, to the power, to the power नहीं बोलते, 2 to the power 5, 2 to the power 6, right? Yes, sir. So this is double star, means it is to the power. Okay. And assignment operator, like these are assignment. This is assignment operator, right? So assign equal to, and plus equal to, then minus equal to, then plus plus, minus minus. These are increment and decrement operators, right? So there are so many operator available. So on detail में हम देखेंगे, but फिलहाल हम arithmetic operator देख सकते हैं, some example practice कर सकते हैं, but वो भी बाद में करेंगे operator का details. अब ऑपरेटर की प्रीसीडेंस देखना है आपको, तो आप यहाँ से देख सकते हो. प्रीसीडेंस पता है ऑपरेटर का तीन चीज होता है. जैसे मल्टीपल ऑपरेटर तुम एक ही स्टेटमेंट में यूज कर रहे हो, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक ही साथ ऑपरेटर करते हो, तो किस तरीके से किसी का प्रायोरिटी, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी. क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी, राइट? एसोसिएटिविटी मतलब कौन सी ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट? एसोसिएटिविटी उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस मींस कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा. एसोसिएटिविटी मीन वो लेफ्ट टू राइट, जैसे आपने प्लस 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 5 प्लस किया हुआ है, तो वो राइट टू लेफ्ट पहले एग्जीक्यूट होगा कि लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, तो उसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी, राइट? So there are different type of operator available over here. Hundreds of operators are available, but most used operator like arithmetic operator के साथ assignment operator. These are shorthand representation. Assignment operator के अंदर आता है इतने सारे, plus equal to, plus minus. ये हम आगे जाके सब डिटेल्स में पढ़ेंगे, सबका डिटेल्स पढ़ेंगे, राइट? बट आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, गूगल में जाके भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर कैसे यूज होता है, क्या होता है, आप कर सकते हो. बट ये मेन इंपॉर्टेंट चीज कोई भी ऑपरेटर का होता है, एक तो ऑपरेटर टाइप, तो ठीक है, ये जो कंपैरिजन मैंने बताया वो सब है, बट ये प्रेसिडेंस पहले होता है. प्रेसिडेंस कैसे मैं बताऊंगा आगे. और एक एसोसिएटिविटी, ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और हर एक ऑपरेटर के हमेशा ऐसा नहीं कि लेफ्ट एंड राइट में दो ऑपरेंड चाहिए होगा, कोई एक ऑपरेंड के ऊपर भी ऑपरेट हो सकता है. क्लियर? एनी डाउट? ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप लोग पढ़ चुके हो. Yes, sir. बट इन डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ते, एग्जाम्पल तो कहीं भी मिल जाए, कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो. बट आपका जो मेन चीज फोकस करने की जरूरत है, जब मल्टीपल ऑपरेटर एक ही स्टेटमेंट में यूज करें, मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा लेटर, उस टाइम में क्या होगा. उस टाइम में लेफ्ट टू राइट होगा एग्जीक्यूशन या राइट टू लेफ्ट होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कुछ चीजें देखो, न्यू कीवर्ड्स जब यूज करें, इट इज ऑल्सो एन ऑपरेटर. ये क्लास जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब न्यू यूज करते हैं हम.
तो वो हमेशा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है, पहले राइट में एग्जीक्यूट होगा फिर स्टोर होगा लेफ्ट में, राइट। असाइनमेंट ऑपरेटर कैसा होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी राइट टू लेफ्ट ही होता है। नॉट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, लॉजिकल ऑपरेटर दीज आर राइट। टाइप ऑफ ऑपरेटर, इसमें कोई प्रेसिडेंस, राइट टू लेफ्ट ही होता है। इसका मतलब क्या, राइट में पहले एग्जीक्यूट होता है फिर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू लेफ्ट में स्टोर होता है, राइट। तो कौन सा लेफ्ट टू राइट, कौन सा राइट टू लेफ्ट, ये भी ये थोड़ा देख लेना आप। जो जितना भी ऑपरेटर, जब एरिथमेटिक ऑपरेशन अभी खाली मैंने बताया तो वो खाली एक देख लेना, बाकी सब जितना ऑपरेटर मैं बाद में ग्रेजुअली बताते जाऊंगा तो आप देखते जाना। बट ये जो यूआरएल दिया ये तुम्हारा एसोसिएटिविटी एज वेल एज प्रेसिडेंस मैटर करता है। जहाँ पे 2 प्लस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन को पहले हाई प्रायोरिटी मिलता है, राइट। जैसे तुम एरिथमेटिक ऑपरेशन में जाओगे, यहाँ पे प्लस स्टार, तो स्टार को पहले मिलता है, पावर को सबसे ज्यादा मिलता है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस को सेम प्रायोरिटी मिलता है, राइट। तो ये लोग पहले जो लेफ्ट में होगा ना वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जाके राइट में होगा। वो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, माइट बी टुमारो, आज बेसिकली खत्म कर लेने दो, राइट। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हो गया, फिर डेटा टाइप की बेसिक्स। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते तो उसमें जो किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसके लिए हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। कहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज में, जावा और C++ उसमें, राइट। इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर, डबल स्टोर करना है तो डबल, फ्लोट नंबर स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप फ्लोट होना चाहिए, स्ट्रिंग हो तो स्ट्रिंग, फिर कैरेक्टर हो तो कैरेक्टर, राइट। सो डेटा टाइप डिफाइन करते तो मेमोरी में वो मेमोरी एलोकेट कर देता है इतनी बाइट का। जैसे इंटीजर के लिए कितनी बाइट होता है, कोई बता सकता है? इंटीजर डेटा टाइप के लिए कितनी 4 बाइट, सॉरी 2 बाइट्स, 2 bytes. 2 बाइट्स 64 means 2 bytes bytes, means sir. 16 bit, 1 Two, byte two. equal to 8 bit, right? तो Yes, 2 sir. bytes means 16 bit। सर फ्लोट नंबर के लिए 4 बाइट, 4 बाइट, Byte, 4 कैरेक्टर के byte, लिए, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, ऐसे ऐसे बाइट होता है, राइट। तो वहां पे वो पहले से हमको डिक्लेरेशन के टाइम देना पड़ता है, बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जैसे बताया कोई डेटा टाइप हम डिफाइन नहीं करते, जो डेटा स्टोर होता है उसके हिसाब से वो मेमोरी एलोकेट कर लेता है, राइट। उसका डेटा टाइप चेंज हो जाता है इम्प्लिसिटली, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग आपके हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी टाइप ऑफ डेटा टाइप है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे मेनली 2 टाइप ऑफ, string, boolean, objects, array. यस मेनली 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है रेफरेंस डेटा टाइप। व्हाट इज रेफरेंस डेटा टाइप एंड प्रिमिटिव, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। वो आगे आगे मैं बताते जाऊंगा जब बताऊंगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है ना, वो रन टाइम में स्टोर होता है, वो स्टोर होके कहीं पे मेमोरी में नहीं रहता, बट ये रन टाइम में जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइन किए हुए वही स्टोर होता है, वो बाद में यूज नहीं कर सकते। जब हम रिफ्रेश कर देते हैं फिर से उसका वैल्यू जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइन किया हुआ वही रहता है, राइट। बट रेफरेंस टाइप क्या है ना, ये कोई परमानेंटली मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाता है तो उसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस मतलब एड्रेस, राइट। तो वो क्या करता है, रेफरेंस टाइप जो डेटा है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, ये क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल में एरे में स्टोर करता हूं तो वो एरे स्टोर नहीं करता, उसका एड्रेस की लोकेशन, सॉरी इसका जो जहां पे स्टोर होता है उसका मेमोरी लोकेशन वो वेरिएबल में स्टोर होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप। तो रेफरेंस टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट एंड एरे आर रेफरेंस टाइप, ऑब्जेक्ट एरे फंक्शन दीज आर रेफरेंस टाइप, दीज आर नॉट प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप कौन सा है ना, नंबर, स्ट्रिंग एंड बुलियन, राइट। नंबर मीन्स जब भी कोई भी नंबर माइनस हो प्लस हो कुछ भी नंबर हो, या ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है, पॉइंट ये जो 22.956 इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, और डेसिमल नंबर बोलते हैं, राइट। तो ये हर टाइप के नंबर, ये नंबर टाइप होता है इसमें। जैसे हाई लेवल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है, जैसे डबल, फ्लॉट, देन नंबर, इंटीजर, सॉरी इंटीजर मतलब
माइनस नंबर एंड प्लस नंबर विदाउट डेसिमल। तो इसमें Booleans, सॉरी, हाँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर, इसमें जितने टाइप की नंबर है सब नंबर्स टाइप में ही आता है जावास्क्रिप्ट में, राइट? Sir. हाँ sir, in Booleans, value stored in the form of 0, 1, true or false. हाँ, मैं बताता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है कि जब डबल कोड या सिंगल कोड या दो बैकटिक के अंदर रखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, राइट? बैकटिक मतलब क्या है? जो बैकटिक होता है ना, आप टील्ड साइन के अंदर होता है बैकटिक, वो भी स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग लिटरल भी बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल। ये डबल कोट है, ये सिंगल कोट है, राइट? तो ये डबल कोड या सिंगल कोड या स्ट्रिंग लिटरल के अंदर कुछ भी हम रखते तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकता है, बट उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। बट हाई लेवल लैंग्वेज में अगेन मैं कंपेयर करके बताता हूँ, देयर इज कैरेक्टर टाइप आल्सो देयर, CHAR, इफ यू हैव लर्न C और C++, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर कुछ भी होता है वो स्ट्रिंग में ही जाता है, राइट? और एक बुलियन, बुलियन मीन्स क्या है? जिसमें ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, 0 1 नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स। 0 1 तो एक ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथी एंड फॉल्सी Okay, वैल्यू, sir. मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन का मतलब है ट्रू और फॉल्स, दिस टू ओनली। आप कुछ भी डालते हो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है ट्रू और फॉल्स में। कोई भी 0 डालते हो दैट इज ए वैल्यू, बट इट इज कन्वर्टेड टू फॉल्स। Sir, यस, through Boolean we are considered for yes or no. फॉर Through Boolean we are considered true, false, and yes or no. no, yes no is, there is no any value for yes and no, only true and false are the boolean value। but कुछ भी वैल्यू 0 डालते, नल डालते, अनडिफाइंड डालते तो वो ट्रू या फॉल्स ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। ओनली ट्रू एंड फॉल्स, दिस टू वैल्यू आर boolean, रिमेंबर। Okay. ठीक है भाई, अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया है हम्म तो उसका जब कंसोल में देखते हैं तो या तो अनडिफाइन आएगा वो और नल हम्म आएगा। अगर अगर अनडिफाइन आता है तो वो डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप में जाएगा? उसका डेटा टाइप में नीचे दिखाऊंगा, वो अनडिफाइंड स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप है। और ओके नल है वो ऑब्जेक्ट, उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ओके राइट? एरे वो भी ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है? ये थोड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन में दिखाऊंगा यहाँ पे स्ट्रिंग का। फिर वो एस्केप कैरेक्टर है, फिर एरे ऑब्जेक्ट कैसे ये होता है। और उसके नीचे सबसे नीचे ये फंक्शन है, और सबसे नीचे टाइप ऑफ ऑपरेटर जो दिखा है मैंने, इसमें हर टाइप का, नल का भी टाइप क्या होता है, एन का क्या टाइप होता है, फंक्शन का टाइप क्या होता है, एरे का टाइप क्या होता है, ये मैं दिखाऊंगा सब। जो डेटा टाइप अपने समझते हैं ना, वो सब कुछ, ठीक है? यस। ओके। और भी कोई आपको सवाल है तो पूछ सकते हो यहाँ पे भी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे विपिन ने पूछा, ऐसा आप लोग भी पूछ सकते हो, ठीक है? देन बुलियन जो है, ये बुलियन में ओनली ट्रू और फॉल्स होता है। कुछ भी वैल्यू डालते वो अल्टीमेटली चेंज तो इसी में ही होता है, ट्रू या फॉल्स, ओके? और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। बट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लिटरल नोटेशन इसको बोलते हैं, लिटरल नोटेशन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है? एरे, you are very much aware about it if you want to store multiple heterogeneous of data, जो सी में स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एरे में अपने मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं एरे में। ऐसे नहीं कि खाली नंबर है तो वो नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज in high level language, again I am saying, whenever you are declaring a variable for array, then you are also mentioned that it is a integer type of array, means all integers should store inside that array, not other value. But in case of, again, JavaScript, there is no restriction of, because there is no restriction of data type. It is in weakly typed programming language. You can store a string or a number or an object or anything inside this array, right? So these are reference type of data type. इसके अंदर जो की वैल्यू फॉर्मेट है ये प्रिमिटिव है, बट
जब रेफरेंस टाइप बनता कैसे, प्रिमिटिव टाइप की डेटा टाइप को लेके रेफरेंस टाइप बनता है। जब ये इसको रेफरेंस टाइप क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, बिकॉज if you store something inside this object, means if you assign this object to an variable, then this variable store the memory location of this object, not exactly the value of this location, the value of this object, right? ये क्या स्टोर करता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं पे स्टोर होता है और उसका मेमोरी लोकेशन को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, वो स्टोर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को स्टोर करते हैं। व्हाट डज इट मींस, मीनिंग ऑफ रेफरेंस, एड्रेस जहां पे ये स्टोर होता है, बिकॉज दीज आर परमानेंटली स्टोरेज में स्टोर होता है। कहाँ पे परमानेंट स्टोरेज एंड कहाँ पे कौन सा परमानेंट नहीं है मैं बताऊंगा जब मेमोरी समझाऊंगा थोड़ा। सो यहाँ तो कोई डाउट है आपको? ये 5 टाइप की डेटा टाइप के अंदर ये स्पेशली जो प्रिमिटिव 3 टाइप की डेटा टाइप वाला, आप जो आप क्यों मैं आपको दूसरे लैंग्वेज की कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप वो पढ़ के आए हो। हाँ सर ये ऑब्जेक्ट में इसमें एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यूज? बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें। जैसे नेम इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसमें नीचे दिखाऊंगा मैं, नेम ऑब्जेक्ट बनाया, नेम इक्वल टू मैक्स, एज इक्वल टू ये, फिर हम लिखते हैं कि उसका एड्रेस इक्वल टू अहमदाबाद, राइट, एड्रेस कॉलन अहमदाबाद, तो ये एक बंच हो गया। ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इसमें और भी कोई की डालना है, की वैल्यू, उसको भी हम कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका फिर कैसे उसको एक्सेस करेंगे वो सब बताऊंगा। मल्टीपल रख सकते हैं, ऐसा नहीं खाली एक ही वैल्यू रख सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा डिटेल तो तब समझ जाओगे। एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट है? ओके, No, sir. okay, so here are some example I have mentioned for the string. जैसे मैंने यहाँ पे कुछ जो 3 टाइप की डेटा मैंने बताया था उसमें कुछ एस्केप कैरेक्टर होता है, मैं वो बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट विजिबल क्लियरली माय स्टोर ये एडिटर? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. So editor you have installed in your PC as explained yesterday. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके जो मैं असाइनमेंट जो करता हूँ वो रोज के रोज करते जाने का, नहीं तो पीछे चले जाओगे आप, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तो तब टाइम नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ओके सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 टाइप ऑफ स्ट्रिंग लिटरल मैंने यूज किया, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बताया था आपको सिंगल कोड, डबल कोड और बैकटिक, राइट? तो सिंगल कोड को जैसे सेव करता हूं तो ये क्या करता है, वो डबल कोड कर देता है ऑटोमेटिकली। ये एडिटर की स्मार्टनेस है, राइट? वो बोलता है कि डबल कोड ही यूज करो। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। जब मैं बैकटिक यूज करता हूँ यहाँ पर, बैकटिक which is introduced in ES6 only, it was not previously introduced in old JavaScript like ES5 or more, right? Less, right? So versioning you are clear, right? So ES6 and onwards, which is introduced in 2015 को जो इंट्रोड्यूस हुआ था ES6, उसमें ये बैकटिक इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले हम खाली डबल कोड और सिंगल कोड यूज करते थे। तो इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जब सिंगल कोड या डबल कोड यूज करता हूँ तो वेरिएबल एम्बेड करने के लिए, बिकॉज दिस इज वन वेरिएबल, राइट, और इसको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए वेरिएबल का एक्सेस कैसे किया जाता है, उसके नेम के थ्रू। तो नेम या सेविंग, तो सेविंग को मैंने ये जो स्ट्रिंग लिखा है हेलो सीके यू हैव ए वर्थ ऑफ, जो भी सेविंग है फिर प्रिंट होगा एंड इट इज ट्रू और फॉल्स, ये मतलब एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इज दैट ट्रू? तो ये सेविंग को मुझे डायनामिक करना है। डायनामिक मतलब कोई वेरिएबल में जो भी डालूंगा इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट? तो जब सिंगल कोड या डबल कोड दिया तो वेरिएबल को कॉन्केटिनेट कैसे किया, थ्रू प्लस, राइट? क्लियर? बट इन केस ऑफ बैकटिक, इसमें क्या किया मैंने, बैकटिक में क्या किया कि यहाँ पे डॉलर
और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को एम्बेड किया। तो जब बैकटिक यूज करेंगे तो अपने को वेरिएबल बाइंड करने के लिए, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल बाइंड करने के लिए हम डॉलर विथ ये यूज करते हैं, डॉलर विथ कर्ली ब्रेसेस। बट जब सिंगल कोड और सिंगल कोड यूज करेंगे, सिंगल कोड और डबल कोड, तब अपने को वेरिएबल कॉन्केटनेट करने के लिए प्लस यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके। Yes. Yes, sir. इसमें और एक चीज क्या है, जब तुम बैकटिक यूज करोगे ना तो इसको न्यू लाइन में कर दोगे तो भी अपने आप चलने लगेगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा। देखो इसको मैं रन करूंगा ना, देन इट विल वर्क परफेक्टली। लुक ये न्यू लाइन में आ गया ऑटोमेटिक। बट इसमें ऐसे न्यू लाइन करोगे ना तो एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, ये न्यू लाइन सपोर्ट नहीं करेगा। तो टू मेक इट न्यू लाइन हमको इसको कॉन्काटिनेट करना पड़ेगा। कैसे ना, इस तरीके से प्लस साइन में, प्लस सिंबल से। जैसे ये सॉरी, यहाँ पे डबल कोड खत्म हुआ, फिर और एक डबल कोड यहाँ पे चालू करनी पड़ेगी, राइट? तो जाके ये कंसीडर करेगा। तब मैं इसको सपोज नीचे करता हूँ, ये फिर भी ले जाता है, बट इट विल वर्क। जैसे मैं स्क्रीन को कॉन्काटिनेट किया, वो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं दे करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो अभी काम कर रहा है। तो यहाँ पे करना पड़ेगा BR, जो भी आपने को एम्बेड करना है। तो यहाँ पे BR कुछ भी ऐड करेंगे तो न्यू लाइन में चला जाएगा वो। बट ये एरर नहीं देगा इंसर्ट। जब ये निकाल दूंगा मैं, कोड में एरर आ जाता है। आ गया, ये जो लाइन दिख रहा है नीचे, इसका मतलब ये एरर है, राइट? न्यू लाइन में नहीं जा सकता है ना। तो इसको न्यू लाइन में, क्योंकि जब बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, कोई स्ट्रिंग इज ए पैराग्राफ, देन यू हैव टू पुट इट इन न्यू लाइन, राइट? तो इसके लिए तुमको कॉन्काटिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये एरर जाएगा। क्लियर? बट इनके सब बैकटिक कुछ भी यूज नहीं करने का, आपको कहीं पे भी ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इट विल नॉट थ्रो एनी एरर। देखो ये 3 लाइन में हो गया ऊपर। तो backtick is the easiest way and good way to use, always use string literal। string को append करने के लिए आपको backtick यूज करना जरूरी है, राइट? इसमें कोई डाउट है? No. No, sir. Okay, No, sir. now No, sir. we can go with some special character which is called escape character। escape character क्या है? जो काम तो करेगा बट वो प्रिंट नहीं होगा। Yes, sir. और भी बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर होता है। आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पढ़ के आए वो कॉलेज से, C++, उसमें भी एस्केप कैरेक्टर होता है। जैसे /n इज फॉर न्यू लाइन, /t फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, ये सिंगल कोड प्रिंट करने के लिए, डबल कोड प्रिंट करने के लिए, राइट? और ये बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एम्बेड करने के लिए, एम्बेड बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हम डबल कोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट मुझे डबल कोड को प्रिंट ही करने का, तो क्या करूँ? यहाँ पे डबल कोड कहीं पे प्रिंट नहीं होता तुम्हारा। देखो यहाँ पर कहीं पे डबल कोड प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं है। मुझे डबल कोड प्रिंट करना है, तो अब इसमें बीच में डबल कोड डालूंगा तो एरर दिखाएगा। वो क्या करेगा वो? देखो ऐसे कुछ एरर दिखा रहा है, तो मैं प्रिंट कैसे करूँ? इसके लिए मुझे क्या करना, आगे बैकस्लैश लगाना होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा, राइट? सॉरी, ये सिंगल कोड नहीं है, डबल कोड है। ठीक है, ये बैकस्लैश यूज करूंगा तो वो काम करेगा। ये ऑटोमेटिकली कर लेता है, ये जो डबल कोड बीच में सिंगल कोड कर लेता है, राइट? मतलब सिंगल कोड होगा तो डबल कोड कर लेता है, डबल कोड है तो सिंगल कोड कर लेता है। ये स्मार्टनेस है जावास्क्रिप्ट। बट आपको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे बैकस्लैश यूज करना पड़ेगा। बट बैकस्लैश प्रिंट नहीं होगा, वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। बट ये डबल कोड तो प्रिंट हो जाएगा, राइट? देखो ये डबल कोड प्रिंट हो गया, है ना? जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है सीके भाई, उसमें भी बैकस्लैश और कोड का साइन इसमें तो लगा नहीं के, देगा, इसमें तो कुछ भी डालोगे ना इसमें कुछ भी डालेंगे तो चलेगा। चलेगा, क्योंकि ये इसमें बैकटिक है। इसमें अपने को बैकटिक कहीं पे यूज करने की आता नहीं है अपने को। जहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता,
हाँ। दिस इज CK's iPhone। तो apostrophe s कैसे डालोगे स्ट्रिंग के अंदर? जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज, ये आएगा apostrophe s CK's iPhone। तो ये कैसे प्रिंट करोगे? तो सपोज डबल कोड यहाँ पे सिंगल कोड यूज कर रहे हो तो सिंगल कोड बीच में डाल देंगे तो वो टर्मिनेट कर देगा वहां से स्ट्रिंग, बट यहाँ पे इजीली हम प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि बैकटिक वाला जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं पहला वाला, हाँ, उसमें ये इशू नहीं है ना? इसमें कोई ये इशू नहीं है, हमको इसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम। कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, न्यू लाइन करना भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो न्यू जावास्क्रिप्ट में ये एम्बेड किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, सॉरी हाँ एम्बेड किया हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको बोलते हैं। तो सबसे तो बेटर है वो फर्स्ट वाला ये use बेटर है फर्स्ट वाला, इसको ही यूज करने का। ओके। बाकी जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही यूज करते थे, बट ये जानने की जरूरी क्या है अभी ना, जब हम कोई पुराना प्रोजेक्ट आएगा तुम्हारे पास जो किसी और ने पुराना कोड करके रखा, तो उसमें ये कंफ्यूजन तुमको आ सकता है कि भाई ये क्या है, ये डबल कोड है, इसीलिए। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो एस्केप कैरेक्टर मतलब /n करूंगा तो न्यू लाइन हो जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं /n डालूंगा कहीं पे भी, जैसे \n, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे मैं /n दैट्स ट्रू, तो ये क्या करता है देखो, ये न्यू लाइन में ले लेगा, अपने आप ले लिया दैट्स ट्रू। तो /n इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। आपको न्यू लाइन करने के लिए एंटर से नहीं करना पड़ेगा, ये डालना ही पड़ेगा आपको न्यू लाइन के लिए। बट इन केस ऑफ बैकटिक इट इज वेरी इजीली, यहाँ पे जो एंटर डालोगे ऑटोमेटिकली वो /n एम्बेड कर ही लेता है अंदर, आपको कोई जरूरत नहीं है। राइट? ये दिख रहा है, ये न्यू लाइन में आ गया, 2 लाइन हो गया, /n बीच में लिखा तो, है ना? ओके, सो एरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस बेसिक चीजें कल बताऊंगा मैं, नन नल ये अनडिफाइंड ये सब बताऊंगा। ठीक है, ये फिर टिल इट इज द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो ये बेसिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक क्या होता है पता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी बिल्डिंग जब बनता है तो उसका बेस परफेक्ट नहीं होगा ना, तो ऊपर जाओगे तो आप ऑटोमेटिक बिल्डिंग तो गिर ही जाएगा, तुम कितना भी ऊपर अच्छा बना लो, आलीशान बंगला, वो गिर जाता है। तो बेसिक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आज के लिए असाइनमेंट यही है, W3 स्कूल्स में जाना, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ये सब पढ़ना है, व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट Yes, इज sir. ऑपरेटर, पूरा डिटेल पढ़ के आना। ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. ओके। अभी तक कोई Sir. असाइनमेंट? हाँ, Sir, where we have to submit our assignment? वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अपलोड करना है, क्या करना है। आप आपके पास रखना, जो यहाँ से कुछ लोगों को मैं असाइन करूंगा, जो तुम्हारा असाइनमेंट चेक करेंगे और मार्किंग करेंगे। Okay, sir. ओके? Okay. Yes, sir. जितना प्रैक्टिस कर सको, W3 स्कूल्स या बहुत सारे MDN की भी जावास्क्रिप्ट, गूगल में लिखोगे कोई भी चीज आपको बहुत सारे मिलता है, उसमें से कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, राइट? तो जितना करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, नॉलेज बढ़ेगा आपका, है ना? Okay. Okay, sir. यस। चलो लेट्स कंक्लूड। ओके सर। Okay, कल sir. अगेन Thank you, sir. सेम Okay, टाइम पे मिलते, तो मैं आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स फिर वहां से अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, और ये वीडियो में खाली अपलोड कर दूंगा उसके अंदर। Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. ओके, थैंक यू सीके भाई। Okay, thank you, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Thank Bye, you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.